Good morning, students. Hope you all are fine. Today I am starting chapter 10, and name of this chapter is compound interest. First question is, in how many years? It means you have to find the time. In how many years? A sum double itself. यानी it means principal जो है, we will suppose the principal x. It will become double. It means amount will become double of principal, that is 2x. So interest will be simple interest. You know, formula is amount minus P, that is 2x minus x. 2x minus x, it means simple interest is x. Rate is given 8%. Rate is given how much? 8%. You have to tell that in how many years the principal will become double of itself. इट मीन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी ओवर 100. सिंपल इंटरेस्ट इज x. वी विल राइट x in place of simple interest. Principal is also x. Rate is 8. Time you don't know, so we'll write time t upon 100. Now by doing cross multiplication, 100 x is equal to x into 8 into t. It means t is equal to 100x upon x into 8. X will cancel out. 4 2 ja, 4 25 ja, 2 12.5. It means time is 12.5 years और 12 years. और आधे साल में, हाफ ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 6 months. This is the solution of question number 1. Please go through it. Now I am explaining you question number 2. Question number 2. Question number 2 is, you have to find the amount. Formula is given, A is equal to P 1 plus RT over 100. You have to find the amount using this formula. Principal is giving how much? It is given, principal is giving how much? 3200. Rate is given 7.5%. This is rate. And time is given how much? 2 whole 1 by 2 years. First convert it into improper. 2 2 ja 4 or 1 5. 5 upon 2 years. So amount will be, in place of principal you have to write 3200. 1 plus rate is how much? 7.5. यहां लिख दीजिए 7.5. टाइम की जगह लिख दीजिए 5 अपॉन 2 आएगा. नीचे 100 है, वो 100 भी लिख दीजिए. इसको सॉल्व कीजिए. इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? 3200. 2 and 100 will become 200. एलसीएम लेंगे, यहां पे आएगा 200 अपॉन 1 कर देंगे. 1 200 जा 200, 200 1 जा 200 प्लस 75 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7.5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 37.5. इट मीन्स 3200,237.5 अपॉन 200. इसको सॉल्व कीजिए. 0 0 2 1 जा 2 16 जा 16 इंटू 237.5. मल्टीप्लाई कीजिए इसको
मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा ₹3800। In this question, what you need to do, you have to find the amount using this formula. P within bracket 1 plus RT over 100. P is given 3200. Rate is given 7.5%. Time is given 2 whole 1 by 2. इसको improper में पहले बदलेंगे. It means multiply 2 by this whole number. 2 to the 4, add 1 and 8. You will get 4 and 1 will become 5 upon 2 ऐसे लिख देंगे. इट मीन्स टाइम की जगह पे 5/2 ले लेंगे और इस फ्रैक्शन का एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे और कैंसिल करेंगे कॉमन टर्म से, कॉमन नंबर से, तो ये इसका आंसर आएगा. इज इट ओके? आर यू गेटिंग इट? वेरी गुड. नाउ Now I am starting questions of finding compound interest and amount. Question number 4. I am explaining you question number 4, A part. In A part, what is given? What is given? Principal is given how much? Rupees 10,000. Rate is given. Rate is given how much? 5%. Time is given 2 years. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि टाइम हमेशा आपका ईयर्स में होगा. अगर ईयर्स में नहीं होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे पहले ईयर. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड अमाउंट. अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T. ये टाइम है, ये रेट है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है. प्रिंसिपल की जगह पे विल राइट 10,000 क्योंकि इट इज गिवन दैट प्रिंसिपल इज 10,000. 1 प्लस R इज गिवन 5. R 5 दिया है और टाइम कितना दिया हुआ है 2. इसको सॉल्व कीजिए. 10,000 I was explaining question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट फाइंड करने का, कंपाउंड इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड किया जाता है, अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है P विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T. इस फॉर्मूले को यूज करके प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10,000 लिख देंगे. 1 प्लस रिमाइंडर रेट कितना दिया हुआ है 5%, 5 लिख देंगे अपॉन 100 और टाइम दिया हुआ है 2 लिख देंगे. इसको सॉल्व कीजिए. प्लस कैसे करेंगे? यहाँ अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे. 100 एलसीएम हो जाएगा इसका. 100 जा 100, 100 1 जा 100 आएगा यहाँ और प्लस 100 1 जा 100, 1 5 जा 5, यहाँ 5 आएगा. यहाँ पे लिख देंगे 2. 1 0 0 0 0 क्योंकि 10,000 है. 100 और 5 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा अपॉन 100 की पावर 2. Again we will write 10,000. Power 2 is given. It means we will write 100 upon 105 upon 100 2 times. इसे 2 बार लिख देंगे क्योंकि 2 पावर दी हुई है इसकी. अब इसको सॉल्व करेंगे. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे. 105 की 105 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 11025. ये आपका आएगा अमाउंट. अमाउंट आ गया. अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना दिया है 11025. प्रिंसिपल कितना था 10,000. माइनस करेंगे यू विल गेट 1025 रुपीज. अतिया, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको. प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है. आपको अमाउंट निकालना है. फॉर फाइंडिंग अमाउंट यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला P विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R ओवर 100 रेज़ टू पावर T.
what you need to do, you have to just place the value of principal, rate and time which is already given in the question. जो वैल्यूज दी हुई हैं वो वैल्यू रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अमाउंट आपका आ जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट यू अमाउंट कितना है आपका 11025, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज गिवन 10,000 फ्रॉम दिस अमाउंट। 11,025 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 1,025 आपका आंसर आएगा। इज इट ओके? आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड। अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट भी बता रहा हूं, बी पार्ट। कोशिश करूंगा इसके तीनों पार्ट समझेंगे। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है एंड दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज इन होल एक्सरसाइज। पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज करना है। देखिए बुक, वेयर इज बुक? ये इन बी पार्ट व्हाट इज गिवन? प्रिंसिपल इज गिवन हाउ मच? 50,000। rate is given how much? Am I visible to you? Very good. Rate is how much? 10% and time is given to whole 1/2 years. देखिए ये फॉर्मूला आप अच्छे से समझ लीजिए। जब भी टाइम आपको ये होल दिया है और ये मिक्स में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पहले आप निकालिए अमाउंट आफ्टर 2 years। अमाउंट आफ्टर 2 years। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, P1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर T। प्रिंसिपल 50,000, 1 प्लस R कितना है 10 अपॉन 100। टाइम आप 2 साल का निकाल रहे हैं, हाफ का बाद में निकालेंगे। जो होल ईयर हो उसका निकालिए, जो पूरा पूरा होल ईयर दिया हुआ है, ये 2.5 ईयर दिया है तो 2 ईयर का निकालेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। इट मींस 50,000 एलसीएम लेके जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 100 पावर 2 50,000। 2 टाइम्स लिख लीजिए 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। इसको सॉल्व कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 110 इंटू 110। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 60500। ये अमाउंट आपका कितना आया? 2 साल के बाद अमाउंट आया। अब आपको 1.5 ईयर का अमाउंट और निकालना है। 1.5 ईयर का अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे आप? देखिए जितना अमाउंट 2 साल के बाद आया है वही 2 साल के बाद आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका हो जाएगा अब 60,500। अब आप निकालिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फॉर, देखिए 2 साल का आपने निकाल दिया, अब 1/2 ईयर्स का निकालना है। 1/2 ईयर्स इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए, PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है अब? 60,500 इंटू रेट कितना है? रेट वही रहेगा, रेट कितना था 10%, 10 लिख दीजिए। टाइम कितना हो गया 1/2 ईयर्स अपॉन 100 था, अपॉन 100 लिखिए। 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 से काटा ये 5 हो गया, मल्टीप्लाई किया कितना आया 3025, यानी ये इंटरेस्ट आया। अब 2 साल के बाद अमाउंट इतना था, इतना इंटरेस्ट और हो गया, यानी आप निकालेंगे अमाउंट आफ्टर 2.5 ईयर्स। 2 साल और 2.5 ईयर्स के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 साल का इतना था, इसमें इंटरेस्ट और जोड़ दीजिए आधे साल का 3025, यानी अमाउंट आपका कितना आ गया? प्लस किया तो कितना आ गया? अमाउंट आपने प्लस किया तो कितना आ गया? 635
63025, ये तो आ गया अमाउंट, 2.5 ईयर का अमाउंट आ गया। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? हाफ ईयर का इंटरेस्ट तो इतना है, और 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ए माइनस पी। ए कितना था? 60500 2 साल बाद, और प्रिंसिपल कितना था? 50,000, यानी इंटरेस्ट था 10500। ये तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया, और आपको निकालना है इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर, यानी 2 साल का इतना था, और हाफ ईयर का कितना आया? 3025। इसको प्लस कर दीजिए, 13525 आपका इंटरेस्ट आया 2.5 ईयर का, और 63525 आपका अमाउंट आया 2.5 ईयर का। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।